Hey, hi everyone. Good morning. I hope you have completed the first worksheet. I will just be briefing you around this worksheet, ki what is there in this worksheet and what you have to do. What are some concepts that we'll be studying. Uh, ये worksheet में the last worksheet was more about addition, subtraction, division. हमने ये पढ़ा कि just revise किया कि addition कैसे करते, थोड़े word problems थे. Maybe last part was a bit difficult, but again, if you have not completed that worksheet, please do that worksheet and then come here. ऑल्सो आई एम अगेन स्पेसिफाइंग, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर वो वर्कशीट तुम्हें हार्ड लग रही है तो प्लीज लेट दीदी और मी नो सो दैट what we can do is rather than doing integers, which is a very important topic, integers is the base for all your 9th and 10th. I will tell you because ये अगर ये नहीं आएगा तो 9th 10th में बहुत कुछ नहीं आने वाला है और आगे भी कुछ नहीं आएगा. तो पर अगर फर्स्ट वर्कशीट डिफिकल्ट क्या है, जहाँ पे ये नहीं समझ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे समझ करने हैं, तो फिर we will plan something else this week. I will give you some different worksheet जिसका भी मैं video and answer sheet दे दूंगा, but let us know about it, okay? And we will also take a call कि किसको क्या करना है. But if you feel that you are facing problems, please let us know and don't do this worksheet then. Those who found the first worksheet easy and could get much of the many of the sums and felt that ठीक है चलो ये सही है, ये मुझे आ गया, तो go on to the second worksheet. ठीक है, what we are going to do in this worksheet is actually study now what is integers. This is going to be an introduction to integers कि integers में क्या क्या होता है, integers के basic properties क्या है. ठीक है, so what are integers? Integers are basically all numbers from minus to plus. So minus 1000 से लेके plus 1000 तक, minus infinity से plus infinity, even including zero. तो पहला उन्होंने definition दिया है कि what are integers. You have to fill this 1 2 3 are said to be what integers. यहाँ से देख के fill करो what is this integer, which is this, is which is a number which is neither positive nor negative. You will see it in that line. व्हाट इज दिस एक्सरसाइजेस, यहाँ पे बहुत सारे रैंडम नंबर दिए और ये सेंटेंसेस जो बीच बीच में दिए ना, अंडरलाइन किए हुए या बोल्ड में, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. तो वो अच्छे से पढ़ना पहले. ये बॉक्स में से जो इंटीजर्स है उनको टिक करना है, जो इंटीजर्स नहीं है उनको नहीं टिक करना है. अभी तुम्हें पहचाना है कि कौन सा इंटीजर है. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट. देन आई कम टू दिस पेज. यहाँ पे आके व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, there are negative integers this side, positive integers this side. Positive is in the right and right of this zero and this is left of zero. ठीक है, अभी यहाँ पे है represent -6 on the number line. तो -6 कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे? पहले तो ये नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है पेंसिल से, बाय द वे पेन मत यूज करना. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 अभी -6 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 0 से कितना जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, -6 लेफ्ट साइड. अगर मुझे +2 रिप्रेजेंट करना है तो 0 से +1 +2 राइट साइड. राइट, टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द डैश ऑफ 0, राइट या लेफ्ट, यहाँ पे भी राइट या लेफ्ट. फिर क्या करना है, दीज इंटीजर्स यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर इन योर बुक ऑन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. एक तो बुक में ड्रॉ करो यार, इसके बैक साइड भी जगह है वहां पे ड्रॉ कर दो. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, कि ड्रॉ करना है मतलब 0 के बाद कहाँ पे आ रहा है वो नंबर, 0 के पहले कहाँ पे आ रहा है. ड्रॉइंग अ नंबर लाइन यूजिंग अ पेंसिल. Cool. I hope you have got that. Then we are, that was a horizontal. Horizontal is sleeping line, vertical is standing line. तो vertical, now this is a vertical thing. So 0 से ऊपर अगर हम जाएंगे, up, they are positive. So 0 से ऊपर is 1 2 3 4. 0 से नीचे आएंगे तो minus, -1 -2 -3 -4. इन्हें नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाता है, इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है. तो नंबर्स अबाउ 0 आर पॉजिटिव, नंबर बिलो 0 आर नेगेटिव. ये करना है और फिर हमें वर्टिकल नंबर लाइन बनाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, और उसमें मार्क करना है कि 8 कहाँ पे आएगा, 4 कहाँ पे आएगा, -3 कहाँ पे आएगा. ठीक है, प्लीज ट्राई टू डू दैट. Now what you have to do in the next part is give me time to scroll down. Okay, awesome. What you have to do in this is, now you have a number line which is given to here. It is a vertical number line. To answer this question, if point D is +6, then which is point -6? इस सब में -6 कौन सा पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है. वैसे ये तीनों क्वेश्चंस आंसर करने हैं. नेक्स्ट, now here is something that you will study about absolute value. Okay, this is very important. Absolute value मतलब क्या, हमें उसमें हम साइन नहीं देखते. अगर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 है,
-5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, तो वी डोंट सी द साइन, वी जस्ट सी कि उसकी वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल सी दिस टू बार, दे आर कॉल्ड बार्स, दिस लाइन दे आर कॉल्ड बार्स. सो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी 5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी 5. तो अगर कोई नेगेटिव साइन है तो हमें उसको रिमूव कर देते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इफ -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी 7. This is called an absolute value. Okay, please remember this. This will be also be very helpful when you go in 9th and 10th, क्योंकि बहुत सारे सम्स में एब्सोल्यूट वैल्यू का सम आते हैं जिसमें हमें उन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आगे सॉल्व करना होता है. तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना. इफ आई गो डाउन नाउ, व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, ओके, यहाँ पे इसके अपोजिट लिखना है. इंक्रीज का अपोजिट क्या है, लॉस का अपोजिट क्या है, अबाउ नॉर्थ का क्या है, साउथ का क्या है. देन यू हैव टू आंसर दिस. The number 6 and -6 have same or different absolute value. अगर ऊपर अपने absolute value पढ़ी राइट, तो वो सेम होती है कि डिफरेंट होती है, ये पढ़ना है. देन यहाँ पे उसके अपोजिट लिखना है. 3 का अपोजिट क्या है -3, तो -43 का अपोजिट क्या रहेगा. यहाँ पे उन्होंने समझाया है व्हाट इज नेगेटिव यूज्ड एज. फॉर एग्जांपल -43 का अपोजिट विल बी +43. सो प्लस माइनस आर अपोजिट्स, left right are opposites, you have to use that concept. And then there are some sums here. A submarine is moving at a depth 800 below. हमेशा याद रखना, now you have to use the number line का concept जो हमने above below किया था या left right किया था. अभी जब भी हम जीरो से ऊपर जाते हैं मतलब उसके above जा रहे हैं तो that will be positive, जीरो से below जा रहे हैं तो negative, right? यहाँ पे हमने हमें सम क्या बोला है, submarine is moving at a depth 800 मीटर below. तो below आया तो पहला तो माइनस आएगा और 800 आया तो -800. मतलब ये सब को हमें नंबर्स में आंसर करना है. ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर. आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट because there is nothing much to explain here. There is no concept that is or to me to solve a sum that I have to do. अगर जहाँ पे भी sum solve करने का और anything to explain, I will use a whiteboard. ठीक है, but right now there is no need. Again here हमने यहाँ पे ऊपर देखा above and below का. Let's see here left and right. If this is left smaller value, right larger value. देखो जीरो से हमेशा राइट जाते तो वैल्यू बढ़ती रहती है. ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट. जीरो से लेके 1 गए, 1 से लेके 2 गए, बट इसका अपोजिट होता है जब हम लेफ्ट नेगेटिव में जाते हैं. मतलब जीरो से -1 गए तो और वैल्यू छोटी हो गई, भले ही वो 2 3 4 वैल्यू उसकी बढ़ रही है, बट माइनस में हमेशा छोटा होता है, राइट. 1 से -2 गए और हम और छोटी वैल्यू पे गए, -2 से -3 पे गए, वी आर मूविंग टू अ मोर स्मॉलर वैल्यू. ठीक है, तो 7 you have to first fill that. तो first 7 is to the, अगर 7 is greater than 4 तो 7 is to what, right of 4 ना. 4 के राइट में है 7, तो यहाँ पे राइट आएगा. if 4 is greater than 0 तो 4 is to the right of 0, बराबर. 4 भी 0 के राइट में है. वैसे ही जो भी नंबर राइट में रहते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं. जैसे अगर मैं -5 और -7 देखूं, अभी कौन सा नंबर राइट में है, -5 राइट में है, बराबर. तो -5 इज बिगर देन -7. हमेशा याद रखना है, जो भी नंबर राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं, जो भी लेफ्ट में होते हैं वो छोटे होते हैं. हमेशा याद रखना. फर्दर नंबर 0 ऑन द राइट लार्जर इट्स वैल्यू, और फर्दर नाउ 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉल इट इज वैल्यू. 0 से लेफ्ट में रहेंगे जितना दूर उतना छोटा नंबर, 0 से राइट में रहेंगे जितना दूर उतना बड़ा नंबर. सो 0 से 1000 जाऊंगा तो मैं 1000 सबसे बड़ा है, उससे और राइट जाऊंगा दैट इज बिगर. बट अगर मैं 0 से लेफ्ट जाऊंगा -1000 तो वो छोटा है, -10,000 उससे और भी छोटा है. This is a very important concept. Okay, never forget this and never get confused. So fit this in your head for like rest of the years that you're going to study maths. If you don't know this, then many of the things are going to be very difficult for you. Yeah. Next what you're going to do here is you're going to put greater sign कौन सा है, lower sign. जैसा 5 और -5 मैंने क्या बताया कि नंबर लाइन पे देखना, 5 इधर है, -5 इधर है, 5 राइट में है, जो भी नंबर राइट में रहेगा वो उससे बड़ा है. सिमिलरली 0 और 6, 0 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 राइट में है तो 6 बड़ा है. You have to solve this exercise. I hope you have understood. Now, okay, this is again something that is useful. What you have to do here is you have to put ascending and descending order. यहाँ पे ascending order करना है, यहाँ पे descending order करना है. तो इसमें देखना, ascending मतलब small to big, छोटा सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा लास्ट में आता है. descending is उल्टा, big to small, सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा
लास्ट में आएगा. Okay, this is all from this worksheet. Please do this, is very important. Going ahead, we will also see कि addition कैसे करना है, subtraction and multiplication of integers कैसे करना है, जो properties हैं integers के. I hope you have got this. Please check your answers when Didi sends the answer sheet or I send the answer. Yeah, thank you.